Hello everyone, I'm Justina Paris and I welcome you all to the discussion of the 20 questions. ये questions हम discuss करेंगे आज के न्यूज़ आर्टिकल से जो है 13 जुलाई 2024. तो आइए शुरू करते हैं. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है SDG India Index. Now what I have done is I have tried to extract as many questions from this particular passage, so it's going to give you a feel कि आप एक passage जैसे solve कर रहे हो. बहुत सारे questions हम discuss करेंगे अलग अलग topics from that particular passage with regard to SDG India Index. तो चलिए SDG India Index कौन से एजेंसी ने रिलीज किया है? We have seen this. The answer is नीति आयोग. 2018 में इन्होंने ये स्टार्ट किया था, right? So this is with regard to that. Let's proceed to the next question. SDG India Index जो है ये goal wise score on the dash for each state and union territory. So this is asking कितने SDGs ये commute करता है, right? How much SDGs computes? So which is that? कितने हैं? 16 SDGs. Now here you can make a mistake because हमको पता है SDG की अगर हम बात करें टोटल है 17 but सिर्फ 16 are checked. Why? Because the 17th goal that is there it talks about international cooperation. तो इंडिया के लिए हम स्टेट्स की बात करें तो वहां पे इंटरनेशनल कोऑपरेशन का तो सवाल ही नहीं उठता है ना, इसीलिए we have the 16 SDGs, right? So remember this. Let's proceed to the third question. Who releases the Sustainable Development Report? अभी ये रिपोर्ट किसका पूछा है? ग्लोबल पूछा है because it's only talking about Sustainable Development Report. So here you have the UNSDSN, right? ये हमने डिस्कस किया था और ये इनका सेक्रेटेरिएट किस जगह पे है आप मुझे कमेंट सेक्शन में ऐड करोगे. Where is the Secretariat of the United Nations Sustainable Development Solutions Network? This is the one that releases the Sustainable Development Report. Let's understand the next question. Again SDG India Index पे किस स्टेट ने टॉप किया है? Which is the top most state? उत्तराखंड एंड केरला. तो यहाँ पे both 1 and 2 आता है, so that is why your answer is D, right? और bottom performer कौन है? Who is at the bottom? That is बिहार. ठीक है, तो ये आप याद रख लेना. Let's understand the next question. Sustainable Development Goal, ठीक है, also known as Global Goals, was adopted by the United Nations in which year? कौन से साल इन्होंने अडॉप्ट किया था पूछा है, तो ये 2015 में, right? SDG goals came in 2015. Answer is C. Next question, अगर गोल पूछा है टारगेट ईयर भी पूछ सकते हैं. टारगेट ईयर कब है? 2030. So remember the answer is 2030 target year for achieving the Sustainable Development Goals. Next question. What is India's rank in the UN Sustainable Development Report of 2024? इंडिया का रैंक क्या है? इंडिया का रैंक है 109. ये हमने देखा था, स्कोर था 64. अभी हम देखेंगे टॉप परफॉर्मर कौन था. डू यू रिमेंबर? फिनलैंड. ठीक है, टॉप परफॉर्मर इज फिनलैंड. और बॉटम में कौन है? Who is the last one? That is South Sudan. So I hope you have seen the previous video because यहाँ पे हमने बहुत सारे interesting facts भी देखे हैं. Let's understand the next question. Eklavya Model Residential School. Eklavya Model Residential School functions under which ministry? I told you this also. The Ministry of ट्राइबल अफेयर्स. ओके, और ये कब स्टार्ट हुआ था ये आप मुझे बताएंगे इन द कमेंट सेक्शन. वी हैव सीन अबाउट द एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल इन डिटेल इन द प्रीवियस क्लास, सो इन द प्रीवियस वीडियो. सो रिमेंबर द आंसर, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स. लेट्स अंडरस्टैंड द नेक्स्ट क्वेश्चन. संविधान हत्या दिवस विल बी ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी जून 25 बिकॉज जून 25 को 1975 में क्या हुआ था? वी हैड द इमरजेंसी बीइंग इम्पोज्ड. इसी के कारण हम देखते हैं कि जून 25 इज ऑब्जर्व्ड एज संविधान हत्या दिवस बाय द सेंटर. पूछा है इमरजेंसी कब डिक्लेयर किया था? ऑफ कोर्स मैंने बताया है 1975. रिमेंबर 25 जून 1975. एंड व्हेन वाज इट रिवोक्ड? कब खत्म हुआ था? 21 मार्च 1977 में. ओके, सो रिमेंबर द फैक्ट्स. लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सर्ट इन? ठीक है, ये हमने देखा था इन द वीडियो. दैट इज कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम. 2004 में ऑपरेशनल
हुआ है। एंड व्हाट इज द मेजर एम? साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स में ये एक इंपॉर्टेंट काम करता है, सिक्योर करने के लिए, फोरकास्ट देने के लिए, कोऑर्डिनेट करने के लिए। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बॉडी। एंड हम देखते हैं कि अभी न्यूज में भी था, बिकॉज 2 ministries आर फाइटिंग ओवर दिस। ओके, नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन, बिकॉज अगला क्वेश्चन है कि यूनियन मिनिस्ट्री कौन सा है दैट इज करंटली फंक्शन, दैट इज सर्टेन करंटली फंक्शंस अंडर, है ना, कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आता है, पूछा गया है। व्हाट इज द मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मेटी। ओके, मेटी। सो रिमेंबर दिस इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। अभी एमएचए भी चाहता है कि ये सर्टेन उसके अंदर आए, तो इसीलिए ये न्यूज में है। Now the next question is who is the president of Nepal? Okay, हमने प्राइम मिनिस्टर का देखा था बिकॉज इट वाज इन द न्यूज ऑफ कोर्स। केपी ओली शर्मा बनेंगे अभी नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर, बिकॉज वी हैव सीन पुष्प कमल दहाल प्रचंडा ने कॉन्फिडेंस मोशन वो हार गए हैं। सो नाउ क्वेश्चन लेकिन पूछ रहा है प्रेसिडेंट, तो ये आपको चेक करना, बिकॉज यू नो व्हाट हैपेंस मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स थिंक दैट प्राइम मिनिस्टर एंड यू नो दिस हैज बीन इन द न्यूज, द आर्टिकल टॉक्स अबाउट द प्राइम मिनिस्टर, बट सी द क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट द प्रेसिडेंट। ठीक है, तो इसका आंसर है रामचंद्र पुडेल। ओके, सो आंसर टू दिस इज 13B। ऑलराइट, लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ईयर वाज गुड्स एंड सर्विस टैक्स इंट्रोड्यूस? ये कौन से साल इंट्रोड्यूस हुआ था? 2017 में, राइट? 1st July 2017 was the date when it was introduced. So remember, 14 is C. Let's proceed to the next question. GST was introduced as the Dash Amendment Act. कौन से Amendment Act में introduce हुआ था? 101 Amendment Act. ठीक है, कौन से साल में? 2016 में। So remember this number is very very important with regard to GST. 16 question, GST Council is a constitutional body under which article of the Constitution? हमने ये भी डिस्कस किया है. What is the answer? It is 279A of the Constitution. 279A of the Constitution. Let's proceed to the next question. What is the purpose of the Eklavya Model Residential Schools? ओके, स्कूल्स है बट बताता नहीं है कि किसके लिए है. वी हैव सीन दिस इन द आर्टिकल. इट इज फॉर व्हाट? इट इज फॉर मेनली द ट्राइबल चिल्ड्रन, है ना. तो इट इज अ क्वालिटी एजुकेशन टू ट्राइबल चिल्ड्रन इन रिमोट एरियाज. सी है इसका आंसर. ठीक है, लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Which country is the host of the exercise Pitch Black? Now we know Pitch Black जो exercise है recently news में था. Why? Because 12th जुलाई से, कल से, ओके, अगस्त तक, अगस्त 25 तक ये एक्सरसाइज होगा. ये एक एयर एक्सरसाइज है, एयरफोर्स आती है. इनफैक्ट देर आर 20 सच कंट्रीज. तो ये मल्टीलैटरल एक्सरसाइज है, मल्टीलैटरल एक्सरसाइज है. और कहाँ पे होगा? इट इज ऑलवेज इन ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलिया का जो रॉयल एयरफोर्स है, दे आर द होस्ट कंट्रीज. ओके, दे आर द होस्ट. डार्विन ऑस्ट्रेलिया में ये हो रहा है. एंड इट हैपेंस बाईनियल, यानी बाईनियल का मतलब है कि 2 साल में एक बार होता है ये एक्सरसाइज. ओके, एंड इंडिया इज ऑल्सो पार्टिसिपेटिंग. दैट इज वाई वी नीड टू नो एक्सरसाइज Pitch Black. Let's understand the next question. Index of Industrial Production is published by, कौन सी बॉडी करती है? Central Statistical Organization. We have seen in this article, CSO बनाती है. Let's understand the last question of the day. The current base year for the IIP या Index of Industrial of Production series in India is, base year क्या है? बेस ईयर है 2011-12. ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.